Today, the topic is income and cross elasticity of demand, its degrees, measurement, and importance. In this lecture, I am going to cover meaning and definition, measurement, degrees, and importance of income elasticity of demand. Then, meaning, definition, measurement, degrees, importance of cross elasticity of demand. In the end, references and frequently asked question. What is elasticity of demand? It is a measure of responsiveness of a demand to the price of commodity, income of the consumer, and price of related goods. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहा जाता है? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, कंज्यूमर की आय में और संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग कितनी सेंसिटिव है, उसके माप को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है. It shows how much demand changes with change in price of a commodity, income and price of related goods. हमें इससे पता चलता है कि कितना चेंज होगा जब वस्तु की कीमत में, आय में और संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है. There are three types of elasticity of demand: price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. Price elasticity of demand, जब वस्तु की कीमत में परसेंटेज चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज होगा, उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. परसेंटेज चेंज in quantity demanded due to percentage change in price of commodity. Now, income elasticity of demand. Percentage change in quantity demanded due to percentage change income of consumer. उपभोक्ता की आय में जितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, उसके कारण से क्वांटिटी डिमांडेड में जितना परसेंटेज चेंज होगा, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. जब संबंधित वस्तुओं में कीमत में परसेंटेज चेंज होगा, उसके कारण से मांग में कितना परिवर्तन होगा, उसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है. टुडे वी विल डू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Income elasticity of demand. Other things such as price of given commodity, price of related goods, taste of the consumer, etc. remaining constant, percentage change in the quantity demanded of a good caused by a given percentage change in income of a consumer is called income elasticity of demand. जब वस्तु की कीमत में, संबंधित वस्तुओं की कीमत में, उपभोक्ता के टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता, उस समय उपभोक्ता की आय में परसेंटेज चेंज होने पर उस वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन आता है, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. Definition in the words of Lipsy: the responsiveness of demand to change in income is termed as income elasticity of demand. उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर मांग कैसे रिस्पॉन्स करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा
जाता है. Formula for income elasticity of demand. Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. Percentage change को हम इस तरह से लिख सकते हैं, change in Q divided by Q over change in Y over Y. How to calculate income elasticity of demand? इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, change in Q over Q into Y over delta Y. Initially income 200 है और quantity demanded is 10. Income increase हो गई 600 और quantity demanded is 30. Now how to calculate delta Q? Quantity demanded नई में से हम initial quantity को माइनस कर देंगे. 30 minus 10 that is 20. यहाँ पर हम लिखेंगे 20. Now delta Y. 600 minus 200 that is 400. The 400 we will write here. Now Y is 200 and Q quantity demanded is 10. इसको सॉल्व करके इलास्टिसिटी कितनी आई? 1. Unitary elastic. There are different degrees of income elasticity of demand. Number 1 is positive income elasticity of demand. Number 2 is negative income elasticity of demand. Number 3 is zero income elasticity of demand. Now we will explain first income elasticity, that is positive income elasticity. When an increase in the income of a consumer, its demand for income increases. जब कंज्यूमर की आय में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाती है. तुम्हारी पॉकेट मनी इंक्रीज होती है, तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो आप वस्तुओं की अधिक मांग करने लगते हैं. और जब इनकम कम हो जाती है तो वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है. With the decrease in income, demand for the goods also decreases. आय में कमी हुई, मांग भी कम हुई. This we can see in the diagram. Diagram में आप देखिए, diagram में इनकम में इंक्रीज हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड पहले से अधिक हो गई है. पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी 3 तरह की हो सकती है. नंबर 1 is unitary income elasticity of demand. Number 2 is less than unitary income elasticity of demand. And number 3 is more than unitary income elasticity of demand. Now we will explain unitary income elasticity of demand. When a given percentage change in income is followed by equal percentage change in quantity demanded, elasticity is equal to 1. आय में जितना परसेंटेज चेंज होता है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज होगा. ऐसे में इलास्टिसिटी जो है दैट विल बी 1. दिस वी कैन सी इन द डायग्राम. अब डायग्राम में देखो, ओ वाई एक्सिस पे हमने इनकम को लिया है, ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है. तो डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि जितना परसेंटेज चेंज इनकम में हुआ है उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हुआ है. इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. नाउ more than unitary income
elasticity of demand. When percentage change in quantity demanded is more than percentage change in income. इनकम में जितना परसेंटेज चेंज हुआ है उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज होता है. इलास्टिसिटी कितनी होती है? मोर देन 1. दिस वी विल सी इन द डायग्राम. डायग्राम में आप देखो कि जितना परसेंटेज चेंज इनकम में हुआ है उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होता है. तो ये परसेंटेज चेंज है इनकम में, इसके तुलना में ये क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज अधिक है. इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. तो इलास्टिसिटी मोर देन कब होती है? फॉर एग्जाम्पल लग्जरी गुड्स में होती है, ज्वेलरी में होती है, रिजॉर्ट्स में, बिजनेस क्लास ट्रेवल में इलास्टिसिटी जो है वो मोर देन 1 होती है. नाउ लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम. इलास्टिसिटी कितनी होगी? लेस देन 1. इनकम में परसेंटेज चेंज अधिक होगा और क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज जो है वो कम होगा. दिस वी विल सी इन द डायग्राम. डायग्राम में आप देखो कि परसेंटेज चेंज इनकम में अधिक हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज कम है. इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. ऐसा कब होता है? इन केस ऑफ necessity goods. Now, negative income elasticity of demand. जब आय इंक्रीज होती है तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि वस्तु की मांग अधिक होगी. कुछ गुड्स इंफीरियर गुड्स होती हैं. जब कंज्यूमर की इनकम में वृद्धि होती है तो इनकी डिमांड क्या होती है? इनकी डिमांड कम हो जाती है. An increase in the income of the consumer is accompanied by a fall in the quantity demanded of a good. और जब आय कम होती है तो इन गुड्स की मांग अधिक हो जाती है. A decrease in the income is followed by rise in demand. This we can see in the diagram. डायग्राम में देखो कि जब ये इनकम बढ़ी तो वस्तु की मांग पहले से कम हो गई है. यूज्ड कार, यूज्ड क्लॉथ्स, यूज्ड बुक्स, कुकिंग ऑयल, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ राइस, ये सब क्या है? इंफीरियर गुड्स हैं और इनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? नेगेटिव होती है. इनकम के इंक्रीज होने पर इनकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है. नाउ जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड. इनकम कम हुई, इनकम में इंक्रीज हुआ बट इनकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल वाटर. सॉल्ट का इंटेक जो है इनकम के कम होने और इनकम के ज्यादा होने पर चेंज नहीं होता है. तो इनकम इलास्टिसिटी कितनी होगी? 0 होगी. दिस वी कैन सी इन द डायग्राम कि इनकम बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है पर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं होता. इनकम के बढ़ने पर, इनकम के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही रहती है. yes. Importance of income elasticity of demand. Classification of goods. Income elasticity of demand helps in classifying goods. Income elasticity greater than 1 indicates that good is a luxury. Income elasticity is less than 1 but positive implies
necessities. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हम वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं. अगर इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 1 है तो वो गुड लग्जरी गुड होती है, और अगर लेस देन 1 है तो वो गुड नेसेसरी गुड होगी. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. Sellers prefer to invest in those industries where the income elasticity is greater than 1. Producers, entrepreneurs उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जहां पर इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, वहां उनके प्रॉफिट्स अधिक होंगे. मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को हम अडॉप्ट कर सकती हैं. फर्म्स producing products with high income elasticity should concentrate in those marketing efforts that reach in high income group. वो फर्म्स जो वो गुड्स बना रही हैं जिनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई है, तो उनको उन मार्केटिंग एफर्ट्स को अडॉप्ट करना चाहिए जो हाई इनकम ग्रुप के पास पहुंचती हैं. Next is product pricing. A demand for income elastic goods tends to fall with fall in income. Thus, sellers should reduce the price, which may help in increase the demand. एक वस्तु जिसकी मांग जो है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, कम है, तो सेलर को उसकी कीमत को कम करके डिमांड को बढ़ाना चाहिए. नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज अ मेजर ऑफ proportionate change in the quantity demanded of a good X as a result of the proportionate change in the price of good Y. जब गुड Y की कीमत में परसेंटेज चेंज होगा, उसके कारण से गुड X की क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज होगा, प्रपोर्शनेट चेंज होगा, उसके माप को क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. डेफिनेशन है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ responsiveness of purchases of X to change in price of Y. Y गुड की कीमत में चेंज होने पर जब X गुड की क्वांटिटी में चेंज होता है, उसके रिस्पॉन्सिवनेस को क्या कहा जाता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है. नाउ द फॉर्मूला क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज equal to percentage change in quantity demanded of good 1 divided by percentage change in price of good 2. दो गुड्स हैं, गुड X एंड गुड Y. तो गुड X की क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज होगा? डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y गुड. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी X डिवाइडेड बाय क्वांटिटी X इनटू PY डिवाइडेड बाय डेल्टा PY. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा QX डिवाइडेड बाय डेल्टा PY इनटू PY डिवाइडेड बाय QX. How to calculate delta QX over QX into PY over delta PY. प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड 4 है. प्राइस हमने किसकी ली है? पेन की. और क्वांटिटी डिमांडेड हमने किसकी ली है? इंक की. पेन की प्राइसेस 10 है और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंक कितनी है? 4. प्राइस जो है पेन की बढ़ जाती है और क्वांटिटी डिमांडेड इंक की फॉल करती है. नाउ न्यू क्वांटिटी में से हमने ओल्ड इनिशियल क्वांटिटी को माइनस करना है.
delta QX 2 minus 4 is equal to minus 2. Now price of pen, न्यू प्राइसेस में से हमने पेन की इनिशियल प्राइसेस को माइनस किया. 15 minus 10 is 5. डेल्टा PY is 5. PY कितना है? 10 और क्वांटिटी ऑफ X कितनी है? 4. और इसको सॉल्व करके क्रॉस इलास्टिसिटी कितनी आती है? -1. So there are different degrees of cross elasticity of demand. Positive cross elasticity of demand, जब गुड्स सब्स्टिट्यूट्स होती हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है. वाई गुड की प्राइसेस जब इंक्रीज होती हैं तो एक्स गुड की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, टी की प्राइसेस बढ़ी, टी की डिमांड कम हो जाती है और कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है. दिस वी कैन सी इन द डायग्राम कि सब्स्टिट्यूट्स के केस में इलास्टिसिटी कितनी होती है? पॉजिटिव होती है. डायग्राम में वाई गुड की प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा है और कॉफी की डिमांड भी बढ़ रही है. अगर ये इंक्रीज बहुत कम है, स्मॉल राइज in price of Y good brings large changes in the quantity of X. इसका क्या मतलब है? गुड क्लोज सब्स्टिट्यूट है. और अगर Y गुड की प्राइसेस में ज्यादा चेंज होता है और X गुड की क्वांटिटी में कम चेंज होता है, इसका मतलब है गुड क्या है? वीक सब्स्टिट्यूट है. नाउ negative cross elasticity of demand. Negative cross elasticity of demand, it is in case of complementary goods. Complementary goods के केस में cross elasticity of demand negative होती है. This you can see in the diagram. Diagram में हमने X good जो है वो बटर लिया है और Y good जो है ब्रेड है. तो ब्रेड के प्राइसेस जब इंक्रीज हुई तो क्या हुआ? क्वांटिटी बटर की क्या हो गई है? पहले से कम हो गई है. तो वाई के प्राइसेस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है. अगर ये चेंज प्राइस में स्मॉल चेंज होता है और क्वांटिटी ऑफ एक्स में ज्यादा परिवर्तन होता है तो गुड कैसी होगी? क्लोज कॉम्प्लीमेंट होगी. स्मॉल राइज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड ब्रिंग्स लार्ज चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड, देन इट इज अ क्लोज कॉम्प्लीमेंट. और अगर प्राइसेस में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड में कम परिवर्तन हो रहा है तो कैसा कॉम्प्लीमेंट होगा? वीक कॉम्प्लीमेंट गुड्स हैं. लार्ज राइज in price of Y good brings small changes in the quantity of X good. तो कैसा है ये complement good? Weak complement good है. Now, zero cross elasticity of demand. ये कब होती है? When the goods are not related. Goods आपस में संबंधित नहीं होती हैं. Y good की prices में change हुआ और X गुड की क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, डायग्राम में आप देखिए कि व्हीट के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं और शूज की क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. नाउ, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नंबर 1 is intensity of competition in the market. Higher the value of cross elasticity of demand between the products, greater will be the competition in the market and vice versa. Cross elasticity of demand की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी
उतना ही मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगा. Positive value of cross elasticity of demand indicates that the products they are from same industries. Shampoos, soaps, इनके पॉजिटिव वैल्यू है क्रॉस इलास्टिसिटी की, जो क्या इंडिकेट करता है, ये प्रोडक्ट एक ही इंडस्ट्री के हैं. Consumers have become habitual or not, the cross elasticity of demand will tell. किसी भी ब्रांड के लिए उसके कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट के लिए हैबिचुअल हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, ये उस कंपनी को कैसे पता चलेगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलेगा. अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब है कंज्यूमर्स उसके ब्रांड के हैबिचुअल हो गए हैं, और रिजल्ट क्या होगा? फर्म्स मे बी एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस. फर्म्स ज्यादा प्राइसेस जो हैं वो चार्ज कर सकती हैं. इस तरह से इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फोरकास्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करते हो, तो इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी को जानने के बाद आप अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, प्राइसेस में चेंज करना है या नहीं ये डिसाइड कर सकते हो, और आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे क्या प्राइसेस चेंज होने पे आपके प्रोडक्ट में क्या चेंज होगा, इस बारे में हमें अनुमान लगा सकते हैं. This is the reference and frequently asked questions. It is all about income elasticity of demand and cross elasticity of demand. Thank